Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, वी हैव अ सुपर से भी ऊपर अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप एंड आवर टेलीग्राम ग्रुप is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे मोटिवेशन करती है, आप लोगों से इंटरैक्ट करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. Right? उसको प्लीज Vedantu_biotonic उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 rupees becomes available just for rupees 5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. So chalo kids, without any further delay, let's start today's very important topic which is called excretory products and their elimination. So we will do the structure of the kidney, we will do the entire parts of the kidney in detail, how urine is formed, countercurrent mechanism and how each part of the kidney helps in formation, excretion and removal of all the nitrogenous wastes from the body. Without any further delay, let's quickly move on to excretory products and their excretion as well as some regulatory processes occurring within the human kidney. Chaliye. Let me talk about the wastes which are produced and which part of the body is going to excrete them. So undigested waste, whatever your body was not able to absorb is excreted from the GI tract. Yes, the anus and the rectum. The carbon dioxide or the gas which is produced as a waste product by cellular metabolism, ये excrete करेंगे आपकी lungs. Bile pigments, right, breakdown product of RBCs excrete करेगा liver in the form of stercobilin, stercourine. Yes, everybody, ammonia, urea and uric acid are released in the form of urine from the kidneys. So this is a very important thing. ये lung से excrete होता है. Bile तो exams में बहुत आता है. It's a breakdown product of RBCs. RBCs जो 120 days से ऊपर हो जाते हैं, breakdown product of RBCs. The liver excretes them and finally they are excreted out in the fecal matter and the urine. The breakdown products or the waste products of the bile are the ones which give yellow color to the urine or yellow color to the fecal matter. Moving ahead guys, moving ahead to the next one on your screens right now. Ammonotelism. Ammonia. Look at Finding Nemo. Nemo happens to be one of my favorite fishes, the clownfish. And you know, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, ये मूवी बनी इसलिए थी that Finding Nemo बेचारा एक ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास पाई जाने वाली क्लाउनफिश है. इसके कॉन्जर्वेशन के लिए मूवी बनी थी कि कैसे बेचारे को एक्वेरियम में रख दिया जाता है, अपने घर को इतना मिस करता है. सो दिस मूवी वॉज मेड फॉर इट्स कॉन्जर्वेशन बट आयरॉनिकली आफ्टर द मूवी वॉज रिलीज्ड द सेल फॉर क्लाउनफिश बिकेम स्काई हाई. सो आई थिंक दैट्स हाउ चालाक सैडिस्ट एंड इविल ह्यूमन बींग्स आर, राइट. इसको आराम से अपने घर में नहीं रहने देता. इसका सी एनिमोन के साथ एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप होता है. सो इन अ वे अ सिम्बायोटिक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप द फाइंडिंग नेमो क्लाउनफिश shares with the sea anemone. More about it later on. First, let's come to ammonotelism. जितने भी aquatic organisms हैं, you can see the aquatic organisms, ये generally ammonia secrete करते हैं. Ammonia के लिए body surface area high होना चाहिए. Write down these points please. Body surface area high होना चाहिए.
और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अमोनिया की, अमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक, इट्स एक्सट्रीमली टॉक्सिक. सो ये इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है दैट टू एक्सक्रीट इट आउट द बॉडी सरफेस एरिया हैज टू बी रियली हाई. इट्स वेरी टॉक्सिक, बॉडी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, एंड बाहर वाटर होगा तो फटाफट से ये वाटर में डिफ्यूज कर जाएगा. राइट, सो मोस्ट टॉक्सिक इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने आपको बोला. गाइस कम ऑन, शो सम जोश इन द क्लास. गाइस कम ऑन, गाइस कम ऑन. Yes, full attendance in the class. Show some josh. Likes now, guys. I want to see the like button to go up like that. Come on my screen. Right? Whereas uric acid being the least toxic is removed with a minimum loss of water. तो uric acid anhydrous form में भी secrete हो सकता है, anhydrous form में. और uric acid को secrete कौन करता है? Who secretes the uric acid? Reptiles. The process of excreting ammonia is ammonotelism. Many bony fishes, yes, याद करिए crash course. मैंने थोड़े दिन पहले आपको ये करवाया है. 12th का जो क्रैश कोर्स चल रहा है मेरे पास, क्लास 12th के जो मेरे बच्चे हैं, चलिए बताइए. राइट, तो मैंने आपको बताया कि बोनी फिशेस ये अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं. एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर एमोनोटेलिक in nature. Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across body surface through the gills. Gills के थ्रू इसको हम बाहर निकाल देते हैं. Kidneys do not play any significant role in its removal. Gills के थ्रू ही जो respiration है, right, ऑक्सीजन आ रहा है जहां से, वहां से हम इसको बाहर exhale out कर देते हैं, या diffuse out. एयर तो नहीं है, so we are going to diffuse it out. Done. ये रहा आपका ammonotelism. चलिए, ureotelism. Look at mammals. Look at that beautiful squirrel, I think eating a grain there. So you and me excrete out urea. It's not very toxic. It can be, kept in the body for some time. इसको अमोनिया जितने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, यूरिक एसिड जितने कम पानी की जरूरत नहीं होती, इसको एवरेज पानी की जरूरत होती है. Right? So terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water. Right? Lesser toxic मटीरियल्स हैं. मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो लैंड पे रहते हैं, मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक. फ्रेश वाटर नहीं, मरीन फिशेस. अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लिवर में कन्वर्ट कर देते हैं. राइट, ये साइकिल फ्रॉम द अमोनिया, बिकॉज डीअमाइनेशन प्रोडक्ट, जब आप प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करोगे उनका डीअमाइनेशन प्रोडक्ट अमोनिया होगा. सो ऑर्निथिन साइकिल, सिट्रुलिन साइकिल सुना है आप लोगों ने? उससे वी मेक liver, which is filtered and excreted out by the kidneys. Some amount of urea may be retained in the kidney. अगर मुझे सारा यूरिया निकालना है, I must have told you this at least 100 times, कि अगर मैं सॉल्यूट को बाहर निकालूंगी तो पीछे पीछे सॉल्वेंट चला जाएगा. तो अगर मुझे सारा यूरिया बाहर निकालना है, मुझे बहुत ज्यादा पानी एक्सक्रीट करना पड़ेगा. इसीलिए मैं सारा यूरिया बाहर नहीं निकालती हूं, थोड़ा यूरिया मैं रीएब्सॉर्ब कर लेती हूं. डन एवरीबडी. चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं यूरिकोटेलिक. कैन यू सी अ स्पाइडर देयर? कैन ऑल ऑफ यू स्पीक? यस, इंग्वानास. राइट, कैन यू सी दिस? स्नेल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स. मराठी में पता है इसको, मराठी लैंग्वेज में इसको गोगुल गाय कहते हैं. हाउ मेनी मराठीज इन द हाउस? कम ऑन, रेज योर हैंड्स. सो आई रिमेंबर वी कॉल इट Gogulgai. Right? Reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous waste and uric acid in the form of pellet. Pellet is like a छोटी गोली की तरह. Right? With minimum loss of water called uricotelic organisms. Arachnids. Right? Uricotelic guanine की तरह एक छोटा सा पेस्ट, guanotelic भी कहते हैं, छोटा सा पेस्ट के फॉर्म में इसको हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं. ये क्या है आपका अमोनिया? ये थोड़ा सा स्लाइड में दिखाई नहीं दे रहा, दैट्स ओके, हम देख लेते हैं फिर भी. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. राइट, यहां लिख देती हूं मैं, मोस्टली योर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. राइट, आप बताइए यूरिया क्या है आपके? मोस्टली मैमल्स. और ये क्या लिखा है आपका? बोनी फिशेस. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बर्ड्स हैं आपके. दिस लुक्स लाइक अ श्राइक टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. बहुत पहले मैंने एक श्राइक की फोटो खींची थी, बट डजंट हैव अ लॉन्ग टेल, और मे बी इट कुड बी अ वॉबलर एज वेल. फ्रॉम द आई इट लुक्स लाइक अ श्राइक, फ्रॉम द टेल इट लुक्स लाइक अ वॉबलर टू मी. लेट्स सी. बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स. सो यू हैव बर्ड्स, reptiles, insects and land snails, phyla.
लैंड स्नेल्स और पाइला. इज दैट क्लियर? राइट, प्लीज इसका स्नैपशॉट ले लीजिए. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो विद दिस आई एम गोइंग टू बी मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. राइट, नेम द 3 काइंड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन. नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड के पास अमाइनो ग्रुप होता है N, उसकी हम डीअमाइनेशन करते हैं. सो वी हैव अमोनिया, यूरिया एज वेल एज यूरिक acid. Excellent. Ammoniotalism, ureotelism, uricotelism. अब आ जाइए आप organs of excretion in invertebrates पे. What all are the organs of excretion? Most animals have tubular excretory organs. ट्यूब के शेप में उनके पास excretory organs होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मुझे एक स्नैपशॉट ले लीजिए. चलिए, I will also have some warm water, guys. It's only with a lot of difficulty that I'm taking a class for you, right? And you know this channel is actually like a one-man show or a one-woman show. So I have to take classes for you. That's my responsibility. That is something that I owe to you. Can I also tell you one thing? Vedantu has never ever told me. Vedantu is one of the most beautiful organizations to work with. I've been associated with Vedantu for close to 10 years now. It's not been 1 year, 2 year or 3 year or maybe few months that I've been associated with Vedantu. When the founders started their first setup in Lakshya way back in 2010, 2011 in Patiala, that's the time that I've been working with Vedantu. So it's been a decade of knowing the founders. A decade, 10 years is a long time. I have never gone anywhere in 10 years. I've only stayed in Vedantu. And let me tell you from the bottom of my heart, there has never been any pressure, right? I don't know in other organizations how it is, whether get this many. Never, ever have I ever felt, has anybody told me, oh, subscribers are not increasing, oh, likes are not. But this is, it's my passion. It's the way I feel. I like teaching you. I enjoy teaching this. I have a studio in my home. I enjoy teaching you. I enjoy trying to tell you new things. I enjoy coming here at 6 o'clock and telling you great things, right? So just remember, even now when I'm not feeling well, there could have easily been a cancellation. I could have said, listen, and you can see my voice, it's not how normally it is. I'm running very high fever. I've just taken a tablet, very, very high fever I'm running. So in spite of very high fever and a sore throat, I am recording, I am taking your classes. It's only because at Vedantu, we believe that we have to do the best for the children. That's our founding principle. That's something which we stand by. That's something which we abide. That's something which we follow. So in all our classes, you will see that our core philosophy is to be able to do your good. Yes? Chaliye aa jaiye. So I hope you've taken a snapshot of this. It's very important. So इनका काम क्या होता है excretory organs का? Water salt balance को maintain करना. By salt, it could mean any solute. It could mean urea, uric acid, ammonia. Excrete metabolic waste into the environment. Environment में waste को secrete करना. Flame cells को हम planaria कहते हैं. Nephridia या फ्लेम सेल्स को मतलब प्लानेरिया. फ्लेम सेल्स किस में होते हैं? फ्लेम सेल्स आपको पता है, ये देखो कितना अच्छा डायग्राम है. यहां पे ये फ्लेम सेल्स की शेप का देखो. इट्स इन द शेप ऑफ अ फ्लेम. The cell is in the shape of a flame, right? It happens in planarias, jugaceas. Planarias के अंदर horizontal, you know, if you cut them horizontal, it will divide into 2 planarias, right? Nephridia is found in earthworms. ये तो 100% MCQ question है. Malpighian tubules. Can you see this? Grasshopper में Malpighian tubules, cockroach में Malpighian tubules, Insecta, green glands, prawns or crustaceans. See the green gland here, right? Here, right in the beginning, prawns. So this is, at least click a photograph. This is your Malpighian tubules which are found in Insecta. This is your flame cells found in Planaria. Is that clear? Yes, everybody. Nephridias are found in earthworm. Green glands are found in prawns. Done. At least 8 to 10 times these questions have come before in your MCQ examinations. Let's now move to the human excretory system. The human excretory system. The urinary system. Guys, are you liking the video? Have you liked? Have you pressed the like button? Guys, मतलब जैसी आई की वीडियो आए, आप जैसी आओ ये हो जाना चाहिए टक, पहले लाइक और फिर उसके बाद मैम को देखा. Yes, are you liking the video? आ जाइए. Human excretory system, the urinary system forms and excretes urine and regulates water and solutes in the body fluids. Urine को निकालेगा, जो extra solutes हैं, water है उनकी. Yes, so that is why you should know dialysis जिसका होता है, where the kidney is not functioning well, we are not able to
excrete out the water. So for these people it is very important they have regulated amount of water. I have seen people who have dialysis, उनको चम्मच से पानी पिलाया जाता है, right? It's 1 spoon of water, really small. And I'll tell you something very interesting also. जिनको dialysis, people who have to undergo a dialysis or something like that, जो रेगुलरली करवा रहे हैं वो बर्फ खाते हैं, बिकॉज उनसे बहुत धीरे धीरे पानी निकल रहा है बर्फ से, तो उनका प्यास बुझ जाती है, बट द वाटर इज ओनली दिस मच, अदरवाइज एक सिप तो ऐसे ही चली जाएगी, राइट एवरीबडी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वाटर रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं ऑस्मो रेगुलेशन भी कह सकती हूँ. इन ह्यूमंस द किडनीज आर द मेन प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. यूरिन इज ड्रेन फ्रॉम द किडनीज बाय यूरेटर. देखो आप, यूरेटर से नीचे जाता है, करेक्ट, इट गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर, राइट, यहां पे मिक्चुरेशन होगा एंड एक्सपेल्ड थ्रू द यूरेथ्रा, राइट एवरीबडी. यहां पे स्फिंक्टर्स होंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर. एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज वॉलंटरी, यूरेथ्रा में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर इज इनवॉलंटरी. सो यहां पे 2 स्फिंक्टर होंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर्स, राइट. कैन वी डू दिस इन डिटेल? चलिए किडनी के स्ट्रक्चर पे आते हैं. दिस इज वेरी 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 सिंपल, राइट. जो मेरे क्लास 12th के क्रैश कोरियंस है, कम ऑन रेज योर हैंड्स हियर. डिड वी डू दिस इन डिटेल? अभी 2 दिन पहले थर्सडे फ्राइडे की क्लास में वी हैव डन दिस इन डिटेल. वेरी इंपॉर्टेंट. आ जाइए. तो ये वाला आपका पॉइंट हाइलम है, राइट. ये आपने सीड्स में भी देखा होगा, इस पॉइंट को हाइलम कहते हैं, ये, राइट. ये वाला पॉइंट आपका हाइलम है. What is the point called? Hilum. Right? Click a snapshot. पहले आप इस पूरे का लिखे हुए का एक स्नैपशॉट ले लीजिए. चलिए, Hilum is the point of entry. Right? Point of entry. Renal artery यहां से एंटर करेगी, वेन यहां से बाहर आएगी. जो आर्टरी होगी वो सीधा एओर्टा का पार्ट होती है. Renal artery is a direct part of aorta. जो वेन बाहर आती है वो डायरेक्टली आपके इंफीरियर वीना केवा में जाती है. पेल्विस, राइट, इस पार्ट को पेल्विस कहते हैं. एक्सपेंशन, राइट, ये देखिए, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है आपका, इसको हम पेल्विस कहते हैं. इज दैट क्लियर? इस पार्ट को हमने क्या कह दिया? पेल्विस. क्या कह दिया मैंने इस पार्ट को? पेल्विस. दिस इज माय रीनल पेल्विस. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? राइट, एक्सपेंशन आ गया मेरा. और मेजर कैलाइस और माइनर कैलाइसिस है, राइट. अब देखिए बेटा, मैं यहां से शुरू करती हूं आपको बताना. इट्स वेरी सिंपल. ये बाहर वाला पार्ट मेरा कॉर्टेक्स है और ये इनर वाला पार्ट मेरा मेड्यूला है. डन. और ये आपको क्या दिख रहा है? इज द कॉर्टेक्स डिपिंग इनटू द मेड्यूला? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, आफ्टर द साइंटिस्ट हु हैज डन इट. रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी. आप मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे व्हाट इज बेलिनी. व्हाट इज बेलिनी? राइट, डक्ट्स ऑफ बेलिनी. रेगुलर क्लास के बच्चों को मैंने बताया है, इसलिए मैं आपसे भी पूछ रही हूं, मुझे लिख के बताइए व्हाट इज रीनल बेलिनी और द डक्ट्स ऑफ बेलिनी, राइट. तो ये आपका कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला है, आपने देख लिया. एंड जो कॉर्टेक्स है वो मेड्यूला में डिप कर रहा है. यहां पर जब ये मिलेंगे, राइट, तो कॉर्टेक्स हो गया, बेलिनी हो गया, मेड्यूला हो गया, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी हो गया, पेल्विस हो गया, यूरेटर हो गया. एंड यू सी दीज आर माइनर कैलाइसिस. जब वो करेंगे और जब ये मैच करके ये बन जाएंगे, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलाइसिस. जहां माइनर कैलाइसिस होते हैं, राइट, माइनर कैलाइसिस मैच करते हैं और बन जाते हैं मेजर कैलाइसिस. सो लेट्स डू इट. माइनर कैलाइसिस क्या है आपके? 2 और 3 ट्यूब्स में मेजर कैलाइस, 77 to 20 ट्यूब्स में माइनर कैलाइस. छोटे छोटे ट्यूब बन के माइनर कैलाइस, 2 और 3 माइनर कैलाइस जुड़ के मेजर कैलाइस. आउटर पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के अंदर जो नेफ्रॉन होंगे, अगर मैं आपको यहां पे ब्लैक कलर के पेन से करके दिखाऊं, सो जो नेफ्रॉन आपके कॉर्टेक्स में होंगे, प्लीज पे अटेंशन. तो जो नेफ्रॉन आपके कॉर्टेक्स में होंगे उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं. और जो मेड्यूला के पास होंगे उनका लूप ऑफ हेनले लंबा होगा. जो मेड्यूला के पास होंगे उनका लूप ऑफ हेनले लंबा होगा. इनको हम जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कहते हैं. JGN, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, राइट. और जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में काउंटर करंट मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है. जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में काउंटर करंट मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है. तो एक बार दोबारा बता देती हूं. आउटर मोस्ट पोर्शन इज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाद वाला पोर्शन मेड्यूला. कॉर्टेक्स का जो पोर्शन मेडुला में डिप करता है उस पार्ट को हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं. पेल्विस इज दिस पार्ट जहां से यूरेटर ड्रेन हो रहा है, आर्टरी और वेन जहां पे एंटर करेगी, राइट. यहां पे जो छोटे छोटे नेफ्रॉन होंगे वो बनाएंगे, आएंगे माइनर कैलाइस में. 2-3 माइनर कैलाइस जुड़ेंगे मेजर कैलाइस. मेजर कैलाइस इज गोइंग इनटू द pelvis. There are 2 types of nephron. Cortex का नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मेडुला के पास वाला नेफ्रॉन juxtamedullary
नेफ्रॉन। इज दैट क्लियर? चलो तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी को मैं क्या कहूंगी? नेफ्रॉन। व्हाट डू आई कॉल इट? नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, दिस लाइन इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। राइट, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला के बीच की लाइन है। कैन यू सी द लूप ऑफ हेनले? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लूप ऑफ हेनले नजर आ रहा है, और अगर आप और ध्यान से देखो तो आप नोटिस करोगे कि लूप ऑफ हेनले हमेशा मेड्यूला में। कैन यू सी दैट? तो ये आ गया आपका ब्लड वेसल। ये आपको डायरेक्टली रीनल आर्टरी एओर्टा से आएगी। राइट, एओर्टा से आएगी। राइट एवरीबडी। और एफरेंट से ब्लड अंदर जाएगा, इफरेंट से ब्लड बाहर जाएगा। एफरेंट हमेशा थिक होगी, मैं यहां लिख भी देती हूं। एफरेंट हमेशा थिक होगी और इफरेंट हमेशा स्मॉल होगी। और यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा। जो प्रेशर होगा, नेट प्रेशर जिससे फिल्ट्रेशन होगा, इज अराउंड 10 mm ऑफ Hg। आर्टरीज के बीच में गैप हमेशा बहुत ज्यादा होता है। राइट, तो यहां पर जो भी ब्लड वेसल है उनके बीच में गैप होता है। ब्लड वेसल के सेल्स के बीच में गैप होता है। आपको पता है एंडोथेलियल कवरिंग होती है, उसके बीच में गैप होता है। उस गैप को हम फेनेस्ट्रे कहते हैं। तो फेनेस्ट्रे को कवर करने के लिए पोडोसाइट्स आते हैं। पोडोसाइट्स आर द इनर मार्जिन्स ऑफ द बाउमैन्स कैप्सूल। कहां होते हैं पोडोसाइट्स? ऑन द इनर मार्जिन ऑफ द बाउमैन्स कैप्सूल। तो उसके बाद आपका क्या हुआ? उसके बाद आपका पीसीटी फिल्ट्रेट निकल गया। पीसीटी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्योंकि वो पास है, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड फाइनली चला गया आपके कलेक्टिंग डक्ट में। कहां चला गया फाइनली? कलेक्टिंग डक्ट। सो नेफ्रॉन्स आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं। यहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, जस्ट लाइक योर सार्कोमेयर विच वी डिड वाज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, और द न्यूरॉन विच वी डिड वाज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। राइट, फ्लूइड निकलता है यहां से बिकॉज ऑफ प्रेशर। 10 mm Hg मैंने आपको बोला टोटल प्रेशर है। राइट, 10 mm Hg। और फ्लूइड यहां निकल गया और फ्लूइड जाएगा पीसीटी में, पीसीटी से जाएगा लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। और कैन यू सी दिस? अगर आप ध्यान से देखो, राइट, तो जो आपका ये इफरेंट निकल रहा है वही इसके आसपास घूम रहा है। देखो, इट्स कॉल्ड योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इफरेंट ही, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आई डोंट इवन वांट टू स्पॉइल दिस डायग्राम, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपका जो इफरेंट आर्टीरियोल निकला है वो इफरेंट आर्टीरियोल ही तो पूरा घूम रहा है। क्योंकि जब भी आप फिल्ट्रेशन करोगे हमेशा आप एक्स्ट्रा फिल्टर कर देते हो। आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज एंड यू वांट टू रीएब्सॉर्ब इट। सो फॉर रीएब्सॉर्प्शन जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है जिसको वासा रेक्टा कहते हैं, वो इफरेंट ही तो निकलकर घूम रहा है। राइट, चलिए इसी के साथ लेट्स मूव अहेड एंड डू इट। नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितने पार्ट्स है हर किडनी में? 1 मिलियन। एक काम करिए, साथ के साथ जस्ट कीप क्लिकिंग स्नैपशॉट्स गाइस। राइट, ये अभी मैं आपको समझा चुकी हूं, एक बार हल्का सा दोबारा समझा देती हूं। 1 मिलियन, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। सो रीनल ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलस ये, राइट, ये बाहर का बाउमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। इज दैट क्लियर? कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस, बाउमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जहां पर मिलती हैं उसको डक्ट ऑफ बेलेनी कहते हैं। द एंड पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बेलेनी। व्हाट इज द एंड पार्ट कॉल्ड? डक्ट ऑफ बेलेनी। चलिए आ जाइए, अब मैंने देखो कितने अच्छे चार्ट बनाए हैं। एक एक चीज का फंक्शन मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूं, एक एक चीज का फंक्शन। चलो लेट्स गो अहेड जल्दी। आपके ग्लोमेरुलस का क्या काम है? क्या काम है यहां पे? ये बाउमैन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ब्लड वेसल है। जो ब्लड वेसल आ रहा है वो थिक है यहां पे ये, और ये ब्लड वेसल जो जा रहा है वो बहुत थिन है। यहां पर होगा फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है? गैप्स के थ्रू। उन गैप्स को क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रे। गैप्स बहुत बड़े हैं, फिल्ट्रेशन ज्यादा हो सकता है, इसीलिए गैप्स को क्लोज करने के लिए, ताकि बड़े बड़े गैप्स उनको भरने के लिए पोडोसाइट्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? पोडोसाइट्स। राइट, जैसे ये ब्लड वेसल का गैप है, देखो ये ब्लड वेसल है, इसके बीच में देखो गैप कितना बड़ा है, तो ऐसा ना हो कि सारा फ्लूइड निकल जाए, तो इन गैप्स को कवर कर दिया मैंने, देखो, ताकि साइड में सिर्फ छोटा गैप रह गया। सो व्हाट आर दे कॉल्ड? पोडोसाइट्स। ग्लोमेरुलस, पीसीटी,
पीसीटी जो भी एक्स्ट्रा सामान निकला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी, जो भी एक्स्ट्रा सामान निकला मुझे उसको रीएब्सॉर्ब करना है। सो पीसीटी का काम है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फॉस्फेट, सल्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम आयंस। सब कुछ रीएब्सॉर्ब करना है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फॉस्फेट, सल्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम आयंस। Reabsorption of water happens by osmosis, MCQ, cuboidal epithelium, MCQ. Reabsorption of chloride ions, negatively charged ions by attraction, and जो भी मटेरियल है लाइक एंटीबायोटिक्स, इसीलिए डोप टेस्ट करते हैं, यूरिन में डोप टेस्ट किया जाता है, राइट? सो पेनिसिलिन, हिस्टामिन, क्रिएटिनिन, हाइड्रोजन आयंस, बिकॉज यूरिन को मुझे एसिडिक बनाना है सो दैट बैक्टीरिया डोंट ग्रो। सो ऑल ऑफ दिस इज secreted means I'm going to throw it out in the urine. Reabsorption means I'm going to take it back from the urine. Take it back from urine. Are you understanding? And this I'm going to secrete in the urine. Is that clear? Perfect. Can I move ahead? Can I move ahead? Right, everybody? Chaliye. Descending limb of Henle, ascending limb of Henle, DCT and collecting tubule, right? Descending limb of Henle, ascending limb of Henle, DCT and collecting tubule. So descending limb of जो Henle है वो reabsorb करेगा by what? ये water. ये loop of Henle आपका descending limb से water, ascending से salt. इस बात को तो आप याद रख लो, ascending से salt और डिसेंडिंग से वाटर। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके आप सोडियम रीएब्सॉर्ब करोगे, वाटर को रीएब्सॉर्ब करोगे, एंड यू आर गोइंग टू सिक्रीट आउट द हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना भी आपके पास एच और के, एच तो आप इसीलिए सिक्रीट कर रहे हो बिकॉज आपको यूरिन को एसिडिक बनाना है। वाटर और NaCl आप थोड़ा सा रीएब्सॉर्ब कर लेते हो, और सिक्रीट मींस ये आप यूरिन में डाल रहे हो, एडिंग टू यूरिन सिक्रीशन, और इसको आप बैक टू बॉडी, व्हाट कैन आई कॉल इट, एंड कलेक्टिंग डक्ट विल रीअब्सॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस करके पानी को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। डन। सो लेट्स सॉल्व व्हाट डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। अभी बताया डिसेंडिंग असेंडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस ऑन माय स्क्रीन? फास्ट फास्ट फास्ट। What is the difference? Ascending limb is impermeable to water, descending limb is permeable to water. Descending से water, ascending से salt. Descending से water, ascending से salt. Descending से water, ascending से salt. Excellent. Right? Overview देख लेते हैं अभी हम ये तीनों चीजें जो हमने की है। फिल्ट्रेशन कहां पे होता है? ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। प्रेशर क्यों है? क्योंकि एफरेंट मोटी है, एफरेंट छोटी है, बिकॉज ऑफ विच प्रेशर इज अप्लाइड। तो बाउमैन्स कैप्सूल में मैंने फिल्टर कर दिया, थोड़ी सी स्पेस थी, स्पेस को फेनेस्ट्रे कहते हैं, फिर भी वो स्पेस ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मैंने उसमें पोडोसाइट्स लगा दिए थे। Right? I reabsorb in the proximal convoluted tubule all the glucose, salt, amino acids, सब कुछ मुझे वापस चाहिए। These are important things. Glucose, salt, amino acid, I'm going to reabsorb them back. And H plus, urea, acidic material, extra waste material, antibiotics, I'm going to secrete it into the urine. Right everybody? So ये एक awesome से भी awesome slide देखिए, awesome से भी ऊपर slide. Right? Come on guys, इस slide के लिए एक like तो बनता है। Come on guys, come on। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी तबीयत भी अच्छी फील होने लगती है। चलिए come on guys, इस स्लाइड के लिए एक लाइक राइट नाउ। यस, 1 लाइक फॉर वानी मैम्स बैड थ्रोट, ताकि वो ठीक हो जाए कल तक। चलो एवरीबॉडी ऑन माई स्क्रीन, कम ऑन गाइज। गुड गुड गुड। सो यहां पे सबसे पहले क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में वाटर, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट, मॉलिक्यूल, वेस्ट सब कुछ आपने बाहर निकाल दिया है, राइट? तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, राइट एवरीबॉडी? व्हाई? बिकॉज आने का प्रेशर ज्यादा है, जाने का प्रेशर कम है। यहां पे गैप्स हैं, गैप्स को आप फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हो। गैप्स को क्या कहते हो आप? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ये स्लिट्स किसकी बनी होती है? फेनेस्ट्रे। गैप्स बड़े होते हैं तो आपने इनको पोडोसाइट से कवर भी कर रखा है, राइट एवरीबॉडी? उसके बाद आप रीएब्सॉर्ब कर लोगे। रीएब्सॉर्ब आप जनरली कहां करते हो? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। न्यूट्रिएंट, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, आप सारी चीजें रीएब्सॉर्ब कर लोगे। कहां से? पीस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वासा रेक्टा में। ये रहा आपका पीसीटी, तो ऐसे जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। देखो
देखो ब्लड वेसल के अंदर, यहां से ब्लड वेसल के अंदर, और ये जो आप डीसीटी में पहुंचोगे, यहां पे आपको जो भी लग रहा है मेरे पास वेस्ट है, वो वेस्ट चीजें आप सिक्रीट कर दोगे। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, H+ और K+ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीजें आप वापस उसके अंदर सिक्रीट कर दोगे। इज दैट क्लियर? आया समझ में? राइट, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस? ग्लोमेरुलस। यस और नो? कम ऑन गाइस, लाइक। यस। अब आते हैं हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पे। मैं एक काम करूंगी, आपको पता है थोड़ा सा बोन्स बचा और थोड़ा सा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पड़ा है, तो इन दोनों की कंबाइन करके एक स्पेशल क्लास हम फर्स्ट या सेकंड को रख लेंगे। डन? इज दैट क्लियर? सेकंड शाम को प्रोबेबली या कुछ हम इनकी स्पेशल क्लास रख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। बाय द टाइम आई थिंक मैं दवाई लेके मेरा गला एकदम ठीक हो जाएगा। आई डिडंट वांट टू लीव यू विदाउट अ क्लास टुडे, एंड दैट्स व्हाई दिस सुपर डुपर टफ क्लास फॉर मी टू स्पीक इवन व्हेन माय नेक इज नॉट वर्किंग एंड इट्स वेरी पेनफुल. So I'm not finding it very comfortable to speak, my dear kids, and so sorry for that. I think I will continue from here in the next class, right? So because of it's like a tear which has happened on my neck, so it's really troubling me, and before I actually lose all my voice and I'm unable to speak and come for some time, I think I should start from here in the next class. Any which ways, thank you so much for coming. Don't forget to like, my dear kids, please. This is the least you can do for a teacher who's sick but still taking your class. I'm going to see you in the next class. Bye. And guys, make sure you like, make sure you share and subscribe to our amazing channel. Bye.